بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شادی کے 1 مہینے بعد ہی بیرون ملک آ گیا۔ جب بھی گھر فون کرتا تو میری امی میری بیوی کی برائیاں شروع کر دیتی۔ میں حیران تھا میری بیوی کو کیا ہو گیا ہے جو میری ماں کو اس سے شکایتیں ہونے لگی ہیں۔ دھیرے دھیرے مجھے اپنی ماں کی باتوں پر یقین آنے لگا اور میں اپنی بیوی کو فون کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر جب 5 سال بعد میں گھر لوٹ کر آیا تو اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے بات نہیں کی تھی۔ دوسرے دن عید تھی۔ جب اپنی بیوی سے عید ملنے کے لیے کمرے میں گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ میرا نام انور ہے، میں 25 سال کا ہوں۔ تو میری ماں نے میرے سامنے 2 لڑکیوں کی تصویر رکھی اور مجھے کہا کہ ان میں سے کسی ایک لڑکی کو اپنی لائف پارٹنر کے طور پر پسند کر لوں۔ میں نے دونوں تصویروں کو بغور دیکھا۔ ان میں سے ایک لڑکی بہت گوری چٹی اور کافی خوبصورت تھی، جبکہ دوسری سانولی مگر پرکشش تھی۔ اس کے چہرے پر کافی معصومیت تھی۔ میں نے اس لڑکی کی تصویر اٹھائی اور اپنی ماں سے پوچھا کہ امی جان، یہ لڑکی کون ہے؟ میری بات پر میری ماں حیران رہ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ بیٹا تو نے گوری لڑکی کو چھوڑ کر اس لڑکی کو کیوں منتخب کیا؟ تو اس پر میں نے انہیں جواب دیا کہ اماں یہ بہت معصوم لگتی ہے، گھر آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ جلدی گھل مل جائے گی۔ ویسے بھی میں ماں اور بیوی کے درمیان ہونے والی جنگ میں پھنسنا نہیں چاہتا، اسی لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں جو معصوم اور شریف ہو۔ میری بات سن کر میری ماں مسکرا اٹھی اور کہنے لگی کہ ہاں، یہ بات تم نے بالکل ٹھیک کہی ہے۔ یہ لڑکی یتیم ہے اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اپنے چاچا کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے چاچا بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی شادی کر دے، اور اگر تمہیں یہ لڑکی اچھی لگتی ہے تو میں پھر یہیں پر تمہاری بات پکی کر دیتی ہوں۔ مگر سچ پوچھو تو مجھے وہ گوری والی لڑکی اچھی لگی تھی۔ اگر تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، اگر گوری لڑکی آئے گی تو پھر ہمیں ہی نخرے دکھائے گی۔ جب میری بہنوں کو پتہ چلا کہ میں نے ایک ساملی لڑکی کا انتخاب کیا ہے تو پہلے تو وہ بہت حیران ہوئی، مگر پھر انہیں بھی خوشی ہوئی کہ ان کے بھائی نے ایک معصوم اور شریف لڑکی کو ان کی بھابھی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر میری ماں اور بہنیں میرا رشتہ لے کر گئے اور چٹ پٹ رشتہ بھی طے ہو گیا۔ لڑکی کے نصیب بہت ہی اچھے تھے، یہاں اس سے رشتہ جڑا اور وہیں میرا ویزا لگ کر آ گیا جو سالوں سے اٹکا ہوا تھا۔ دراصل میں کئی سالوں سے پردیس کی نوکری میں لگا ہوا تھا، مگر ہر مرتبہ میرے ویزے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا اور یہاں رشتہ طے ہوتے ہی میرا ویزا لگ کر آ گیا اور میں سعودی عرب میں اچھی نوکری مل گئی تھی۔ یہ خبر جب لڑکی والوں کو ملی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ مجھے سعودی عرب جلدی جانا تھا، اسی لیے میری امی نے شادی کے لیے بہت زور دیا اور انتہائی سادگی سے ندا کو میری دلہن بنا کر گھر لے آئی۔ شادی کی رات پہلی مرتبہ میں نے ندا کو اپنے روبرو دیکھا اور اسے دیکھ کر میں واقعی حیران رہ گیا۔ وہ سانولی مگر پرکشش تھی۔ ندا کو دیکھ کر مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ واقعی سانولا رنگ گورے رنگ سے زیادہ پرکشش اور خوبصورت ہوتا ہے۔ ندا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی باتوں میں بھی بڑی مٹھاس تھی۔ شادی کی رات ہی میں نے ندا سے وعدہ کیا کہ میں اسے زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ کے انتقال کے بعد تو وہ بس زندگی گزار رہی تھی، ہر رشتے نے اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا، اسی لیے اب اسے کسی سے کوئی امید نہیں رہی۔ اس کے اتنے اچھے نصیب نہیں کہ اسے خوشیاں مل سکے، میرے نصیب میں صرف آزمائشیں لکھی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اسے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میرے لہجے کی مضبوطی نے ندا کو میری بات پر یقین کرنے پر مجبور کر دیا، ورنہ وہ تو زندگی سے امید ہی کھو بیٹھی تھی۔ چچا چچی کے گھر بھی اس نے ملازمہ والی زندگی گزاری تھی اور سسرال آتے وقت بھی اسے اس بات پر یقین تھا کہ کوئی بھی یتیم لڑکی کو بغیر جہیز کے رخصت نہیں کروا لیتا، مگر میری باتوں نے اسے مجھ پر یقین کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسی لیے پھر اس نے میرے ہاتھ چومے اور اپنی آنکھوں سے لگا کر محبت کا اظہار کر دیا۔ شادی کی پہلی رات بہت خوبصورت گزری تھی اور اس کے بعد کچھ دن تک ہم نے ایک دوسرے کی سنگت میں بہت حسین وقت گزارا۔ ندا میرے ساتھ بہت خوش تھی اور اپنے دل کی ہر بات جو کئی سالوں سے اپنے دل میں رکھ کر چلی جا رہی تھی وہ مجھ سے کرنے لگی۔ ہزاروں خواہشات ایسی تھیں جنہیں مجھ سے بیان کر کے وہ خوشی محسوس کرنے لگی تھی۔ میں بھی اس کی ہر بات بہت توجہ اور غور سے سنا کرتا تھا۔ ندا بہت ہی اچھی اور سمجھدار لڑکی تھی، ہمیشہ ادب سے پیش آتی، وہ میری کسی بات سے مخالفت نہیں کرتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ گزر گیا اور میرے سعودی عرب جانے کا وقت آ گیا، جس ویزے کا میں بہت بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔
अब मेरे जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, दिल चाह रहा था निदा का हाथ थामकर। मैं बहुत अफसुर्दा था क्योंकि मैं इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर मेरे साथ साथ घर वालों का मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ था। 2 बहनों की शादी करनी थी, एक भाई का सेट करना था, फिर घर भी बनवाना था। मैं नहीं चाहता था कि जिस तरह मैंने बचपन में तरसी हुई ज़िंदगी गुजारी है, इस तरह से मेरे बच्चे भी ज़िंदगी गुजारें। इसीलिए मैं चाहता था कि सऊदी अरब की कमाई से यहाँ पर कोई कारोबार सेट कर लूँ और फिर वापस आ जाऊँ। यही वादा मैंने निदा से भी किया कि मैं बस 5 साल बाद वापस आऊँगा और फिर कभी भी इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। इसी वादे के भरोसे निदा ने एयरपोर्ट पर मुझे नम आँखों से रुखसत किया। मुझे सऊदी अरब आकर 1 हफ़्ता हो गया था, मगर मैंने फ़ोन नहीं किया था। बस फ़ोन करके अपनी खैरियत से पहुंचने की इत्तला कर दी थी। 1 हफ्ते बाद जब मैं पूरी तरह से सेट हुआ और घर भी सेट कर लिया और मेरी नौकरी भी शुरू हो गई, तो मैंने घर फ़ोन किया। मैंने सोच रखा था कि फ़ोन करके निदा से घंटों बातें करूंगा और इसे कहूंगा कि इसके बगैर मैं कितनी तन्हाई महसूस करता हूँ और इससे इजहार मोहब्बत करूंगा। मगर दूसरी तरफ अम्मा के रोने की आवाज़ ने मुझे परेशान कर दिया था। कुछ देर की खैर खैरियत के बाद अम्मा ने निदा के हवाले से ऐसी बात कही कि मैं हक्का बक्का रह गया। अम्मा ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद ही तुम्हारी बीवी के पर निकल आए। वो हम लोगों को बातें सुनाने लगती है, तुम्हारी कुंवारी बहनों से काम करवाती है और फिर हमें ये ताना देती है कि हम इसके मियाँ की कमाई खाते हैं। तुम हम पर रहम करो और अब से तुम निदा का अकाउंट खुलवाओ और इसके अकाउंट में ही पैसे भेजना। तुम्हारी बहनों को जो पैसे चाहिए होंगे तो वो निदा से ले लेगी। घर भी मैं निदा के हवाले करने लगी हूँ। मजबूरी का क्या है, मैं तो एक तरफ पड़ी रहूंगी, मुझे पैसों की क्या ज़रूरत। मैं तो वैसे भी जाए नमाज पर बैठकर बस तुम्हारे हक में दुआएं करती रहती हूँ। ये घर तो अब बहू का है क्योंकि तुम कमाते हो, हम सब तो तुम्हारी बीवी के गुलाम बन गए हैं। अम्मा ने अपनी आंसू पोंछते हुए मुझसे ऐसी बात कही कि मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने गुस्से से अम्मा से कहा कि अम्मा, निदा का अकाउंट हरगिज़ नहीं खुलवाऊंगा। आप घर की बड़ी हैं, मैं पैसे आपके हाथ में दूंगा, फिर आप जैसे चाहें इस्तेमाल करना और घरदारी भी आपको ही करनी है। निदा अभी ना समझ है, घर गृहस्थी से ना वाकिफ़ है। आप घर चलाओगी तो मुझे फ़िक्र नहीं रहेगी। आपको मेरी कमाई का एहसास होगा और ये बात भी मुझे गवारा नहीं कि बहनों को खर्चे के लिए मेरी बीवी के आगे हाथ फैलाना पड़े। इसीलिए मैं पैसे आपके अकाउंट में ही भेजूंगा। मैंने गुस्से में कहा कि लगता है निदा का दिमाग ही ख़राब हो गया है। वो पहले तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। जिस पर मेरी माँ ने मुझे कहा कि हाँ, हमें भी नहीं लगती थी, मगर तुम्हारे जाने के बाद इसने ऐसे रंग ढंग दिखाए हैं कि शेरनी बनी फिरती है। फिर मैंने अपनी माँ से कहा कि निदा से बात करवाएं, तो इन्होंने काफ़ी देर बाद मेरी निदा से बात करवाई, जो मुश्किल 2 मिनट पर मुश्तमिल होगी, जिसमें मैंने सिर्फ निदा को सख्त लहजे में तनबीह की कि वो मेरी माँ और घर का ख्याल रखे और घर वालों के साथ अपना रवैया ठीक रखें। साथ ही मैंने ये भी कह दिया कि मेरी बहनें अभी पढ़ रही हैं, इनसे घर का काम काज नहीं करवाना, सारे घर का काम तुम खुद करोगी, इन्हें अच्छी तरह पढ़ने दो। मेरी बात सुनकर निदा हक्का बक्का रह गई। वो तो मेरी किसी मोहब्बत भरी बातों की मुंतज़िर थी। इसे हरगिज़ भी मालूम नहीं था कि मेरी माँ ने इसके खिलाफ मेरे दिल में क्या बात डाली है। मेरे सख्त रवैये और लहजे की करवाहट ने निदा का दिन तोड़ दिया था। इसने अपने होठ सील लिए थे। वो समझ गई थी कि एक बार फिर इसने गलत उम्मीद बांध ली है। इसीलिए हमेशा की तरह इसने सब्र का घूंट पी लिया था और वो मुझसे कोई शिकवा या शिकायत नहीं करती थी। और फिर हमेशा ऐसे ही होने लगा था। मैं जब फ़ोन करता तो मेरी माँ काफ़ी देर बाद मेरी निदा से बात करवाती थी और इससे बात करवाने से पहले ही मेरे दिल में निदा के खिलाफ इतनी बातें डाल देती कि मैं इससे कभी प्यार से बात ही नहीं कर पाता। हमेशा गुस्से और सख्त लहजे में ही बात करता, कभी नरमी से बात करता भी तो खैर खैरियत से आगे ना बढ़ता। हमारा रिश्ता इस तरह से चलने लगा था। फिर पूरे 3 महीने बाद मेरी माँ ने मुझे बताया कि मैं बाप बनने वाला हूँ। माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने इनसे कहा कि मुझे सऊदी अरब आए 3 महीने हो गए हैं, तो अब मैं कैसे बाप बन सकता हूँ। जिस पर मेरी माँ ने कहा कि मैंने खुद तुम्हें ये बात बताना शुरू में नहीं बताई थी कि शुरू शुरू के दिन में कोई ऊंच नीच हो जाती है। तुम ख्वाह बच्चे को लेकर ख्वाब देखना शुरू कर दोगे और फिर अगर कोई बात हो जाए तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। वैसे भी तुम्हारी बीवी कौन सा ये बच्चा पैदा करना चाहती है, वो तो हर वक्त उल्टी सीधी हरकतें करती है ताकि बच्चा ज़ाया हो जाए। इसीलिए मैंने डर कर तुमसे कुछ बात नहीं की थी, मगर अब 3 महीने हो गए हैं, तो अब मैं तुम्हें
बता रही हूँ। बच्चे की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, मगर वहीं दूसरी तरफ मैं बहुत हैरान था कि निदा माँ नहीं बनना चाहती। मैंने अपनी माँ से निदा से बात करवाने का कहा। कब पहली मर्तबा मैंने निदा से मोहब्बत से बात की, वो हूँ हाँ से ज़्यादा जवाब नहीं दे रही थी, जिस पर मुझे अपनी माँ की बात पर यकीन हो गया कि वाकई निदा को इस बच्चे से कोई लगाव नहीं। इसके बाद जब मेरी माँ ने दोबारा फ़ोन हाथ में लिया तो कहने लगी, तुम्हारी बीवी अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती, बल्कि बाहर उल्टी सीधी चीज़ें खाती रहती है। मैं इसे जो पैसे देती हूँ वो सब अपने ऊपर लुटाती है। मैं इसे कितनी दफ़ा मना कर चुकी हूँ कि ऐसी चीज़ें मत खाओ जिससे बच्चे को नुकसान पहुँचे, मगर इसे मेरी बात समझ ही नहीं आती। तुम इसे समझाओ। और फिर जब माँ ने दोबारा निदा को फ़ोन दिया तो फिर मैंने इस मर्तबा निदा से सख्ती से बात की और कहा कि मैं अपने बच्चे के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, इसीलिए मेरी माँ जो तुम्हें दे वही खाया करो, बाहर की चीज़ें मत खाया करो। निदा ने मेरी बात पर सिर्फ जी अच्छा कहा और फ़ोन बंद कर दिया। कुछ आंसू थे जो इसने अपने हलक में ही उतार लिए थे। वो चाहकर भी मुझे कुछ नहीं बता सकती थी कि ज़िंदगी का दायरा इस पर कितना तंग हो चुका है। फिर ऐसे ही महीनों पर महीने गुजरते चले गए और पूरे 10 महीने बाद मुझे बाप बनने की खुशखबरी मिल चुकी थी। हमारी शादी को 10 महीने हो चुके थे और मैं एक बेटे का बाप बन गया। ये खबर ऐसी थी कि मेरा उड़कर पाकिस्तान जाने को दिल कर रहा था, मगर मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और इससे पहले वापसी नामुमकिन थी। कभी कभार मैं अपनी माँ से बच्चे की आवाज़ सुनने की ख्वाहिश ज़ाहिर करता तो मेरी माँ मेरे बच्चे के करीब फ़ोन कर देती। बच्चे की किलकारियों से मेरा दिल खिल उठता था। मेरी बीवी से तो मेरी बात ना होने के बराबर ही थी। मेरा दिल अब अपने बच्चे से मिलने के लिए मचलने लगा था। मेरी बीवी के लिए मेरे जज्बात बिल्कुल ही बदल गए थे। शायद इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरी माँ ने मेरे जहन और दिल में निदा के खिलाफ गलत बातें डाल दी थी। 5 साल मैंने काफ़ी सारे पैसे अपनी माँ को भेज दिए थे, मगर जब मैं अपनी वापसी की बात की तो माँ ने कहा कि जो पैसे मैंने आपको भेजे थे इनसे आकर कारोबार करूँगा। तो मेरी माँ ने कहा कि वो सारे पैसे तो तुम्हारी बीवी और बच्चे की पैदाइश पर खर्च हो गए हैं। फिर मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया करते हुए कहा कि तुम छुट्टियों पर आना चाहते हो तो आ जाओ, मगर अब हमेशा के लिए वापस मत आना। अपनी माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि मैंने अपनी बीवी से 5 साल का ही वादा किया था। 5 सालों में मैंने जितने लाखों पैसे अम्मा को भिजवाए थे, इससे मैं एक बड़ा कारोबार शुरू कर सकता था। मगर ना जाने मेरी माँ ने कैसे पैसे खर्च किए थे जो इनके पास कुछ भी नहीं बचा था। अम्मा तो हर महीने मुझे यही बताती थी, तुम्हारी बीवी के कपड़े आ गए, ज्वेलरी आ गई, मेकअप आ गया, तुम्हारे बच्चे की चीज़ें आ गई और सारे पैसे ख़त्म हो गए। और मैं भी आंखें बंद करके अपनी माँ की बात पर यकीन कर लेता था। और अभी भी मुझे यही लग रहा था कि निंदा की वजह से पैसे जमा नहीं हो सके, क्योंकि मेरी माँ तो हमेशा से जोड़ तोड़ करने वाली औरत थी। मुझे निदा पर बहुत गुस्सा आने लगा। फिर मैं छुट्टियाँ लेकर पाकिस्तान चला गया। घर पहुंचा तो माँ को देखकर बहुत खुश हुआ। सामने ही मेरा 4 साल का बेटा खेल रहा था। मेरा इसे देखकर खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया, तो मैं भागकर इसकी तरफ बढ़ा और इसे गोद में उठाकर खूब प्यार करने लगा। मेरा बेटा पहली मर्तबा अपने बाप की कुर्बत महसूस कर रहा था, इसीलिए वो रोने लगा। सामने ही निदा खड़ी नम आंखों से मुझे देख रही थी और वो बहुत मोहब्बत से बाप बेटे के इस प्यार को देख रही थी। 5 साल बाद अपनी बीवी को देखकर मेरा दिल नरम पड़ गया था और मैं इसके पास आकर सलाम दुआ की इसकी खैरियत पूछने लगा, मगर इसने सिर्फ मेरे सलाम का ही जवाब दिया था। निदा की हालत देखकर मैं चौंक उठा था। वो सूख कर काटा हो गई थी, रंगत सांवली से कुमलाकर काली हो गई थी और चेहरे पर सदियों की थकन थी। अचानक मेरी नज़र इसके बोसीदे और पुराने कपड़ों पर गई, जिस पर जगह जगह से पैबंद लगे हुए थे। इसकी हालत भिखारियों जैसी लग रही थी और यही बात मुझे हैरान और परेशान कर रही थी कि हर महीने जो लाखों रुपए अपने ऊपर खर्च कर रही थी, वो मेरे आने पर ऐसी बदहाल क्यों खड़ी थी। इससे पहले कि मैं निदा से कुछ पूछता, मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई और कहने लगी कि मुझे तुमसे ढेरों बातें करनी है, मेरे पास बैठो और मुझसे बातें करो। मैं 5 साल तुम्हें बहुत याद किया। मैं जो कुछ अपनी बीवी के लिए मैं जो पल अपने बीवी के साथ गुजारना चाहता था, अम्मा के कहने पर अम्मा के साथ आ बैठा, जबकि मेरी बीवी दूर खड़ी नम आंखों से मुझे देखती रह गई। और फिर इसने किचन का रुख कर लिया, क्योंकि आज इसकी बड़ी नंद ने घर आना था, क्योंकि इनका भाई 1 महीने के लिए घर आया था।
और इन लोगों ने कह दिया था कि वो पूरा महीना यहीं पर गुजारेंगी। इसलिए अब निदा को दिन रात इनकी खिदमत करनी थी। निदा ने अपने बड़े नंदोई की पसंद के सारे खाने तैयार कर लिए, क्योंकि वो जब भी आते थे निदा से नित नई फरमाइश करके खाने पकवा कर खाते थे। फिर इसके बाद वो अपनी छोटी नंदों के कपड़े इस्त्री करने बैठ गई। मैं इसके पास आया तो इसके पास मुझे देने के लिए वक्त ही ना था। इसके पास कामों की एक लंबी फहरिस्त थी। इससे पहले कि मैं कोई मौका ढूंढता, मेरी बड़ी शादीशुदा बहनें घर आ गई। बच्चों का शोर और हंगामे में मुझे अपनी बीवी को वक्त देने का मौका ही नहीं मिला। रात को जब सब खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे तो निदा मुझे कहीं नजर न आई। यहाँ तक कि इसकी कुर्सी भी नजर नहीं आई। मैंने निदा को आवाज़ लगाई तो अम्मा ने मुझे रोक दिया और कहा कि रहने दो, वो रोटियां पका रही है। गरम गरम रोटियां खाने की सबको आदत पड़ गई है, ठंडी रोटियां यहाँ कोई नहीं खाता। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो गया और इंतहाई बेदिली से 2-4 लुक़्मे लेकर खामोशी से उठ गया। अम्मा और बहनें मुझे रोकती रह गईं, मगर मेरा खाने पर से दिल उचाट हो गया था। खाना खाने के बाद सारी बहनें मुझे अपने घेरे में लेकर बैठ गई और तोहफे दिखाने की फरमाइश करने लगी। मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लाया था। बहनों ने मुझसे ज़बरदस्ती बैग खुलवाए और जो चीज़ें मैं अपनी बीवी के लिए लेकर आया था वो भी लड़ झगड़ कर सब बहनों ने आपस में बांट लिए और जो बहनों के लिए तोहफे लाया था वो भी अपने पास रख लिए। सिर्फ एक परफ्यूम रह गया था, मैंने इसे ही संभाल कर रख लिया। रात के वक्त मैं निदा का इंतज़ार कर रहा था। वो तकरीबन 2 बजे कमरे में आई तो काफ़ी थकी हुई थी। मैंने आगे बढ़कर इसे गले लगाया और फिर पास बिठाकर बातें करने लगा, मगर निदा के पास मेरी बातों का जवाब नहीं था, इसीलिए वो बस हूँ हाँ में जवाब देने लगी। फिर मैंने इसे तोहफे में परफ्यूम दिया तो वो इसने खामोशी से रख लिया। हाँ, जो चीज़ मैंने बेटे के लिए लेकर आया था वो बड़े गौर और मोहब्बत और तवज्जो से देख रही थी और इसके चेहरे पर खुशी भी नज़र आ रही थी। निदा का बदला हुआ रवैया देखकर मैं हैरान था और फिर मैंने इससे कहा कि तुम आराम करो, सारे दिन की थकी हुई हो। जिस पर वो मुझे कहने लगी, नहीं अभी तो मुझे सब बहनों के कपड़े धोने हैं, सबके कपड़े ही धुलने में पड़े हैं। अगर आज नहीं धोए तो कल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर वो मुझसे इजाज़त लेकर कपड़े धोने के लिए चली गई। मैं बस खामोशी से इसे देख कर रह गया। इसके जाने के बाद मैंने इसकी अलमारी खोली तो मुझे वहाँ कोई नया जोड़ा नज़र नहीं आया, ना जेवरात, ना मेकअप, कुछ भी नहीं। वहीं सब पुराने कपड़े थे जो शादी के वक्त मैंने इसे लेकर दिए थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अम्मा ने जो मुझे कहा था, बताया था, वो यहाँ पर नज़र क्यों नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसीलिए सो गया। अगले दिन फिर मेरी बहनों ने मुझे घेर लिया और फिर तरह तरह की फरमाइशें करने लगी। किसी को घूमने जाना था तो कोई शॉपिंग पे जाना चाह रहा था। मेरी बीवी अकेली बावर्ची खाने में सबके लिए खाने तैयार कर रही थी। मेरी नज़र बार बार बावर्ची खाने के दरवाजे पर जाकर लौट आती। बातें करते करते मैं अपनी बहनों पर निगाह डाल रहा था कि मैंने एक बात नोट की। मेरी बहनों ने बहुत भारी जेवर पहन रखे थे, जबकि इनके शौहर मामूली नौकरी करते थे। इनके हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मेरी बहनें इतने भारी भारी जेवर पहनती। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अपनी बहनों से पूछ ही लिया कि ये इतने जेवर कहाँ से आए। जिस पर इन्होंने कहा कि अम्मा ने बनवा कर दिए हैं। मेरी माँ मेरी बहनों की बात पर बुरी तरह चौंक गई और कहा कि हाँ, मैंने इन्हें शादी पर कुछ नहीं दिया था, इसीलिए बाद में पैसा जमा करके जेवर बनवा कर तोहफा दिया। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। फिर मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया कि इसने एक कारखाना खोल लिया है, जिस पर मैं मज़ीद हैरान हुआ क्योंकि इसने ज़िंदगी में आज तक कभी कुछ नहीं किया था। फिर अचानक से इसके पास इतने पैसे कैसे आए कि इसने अपना कारखाना ही खोल लिया। हर बात मुझे हैरान कर रही थी और बहुत कुछ समझ में आ रहा था। कोई इतना अंधा तो नहीं था कि आंखों देखा सच ना जान पाता। फिर 2 दिन बाद मेरी छोटी बहन, जिसकी शादी मेरे सऊदीया जाने के बाद हुई थी, इसने मुझे किसी काम से अपने घर बुलाया तो इसके कमरे में मौजूद दुनिया भर की सहूलत देखकर मैं हैरान रह गया। जिस पर इसने मुझे बताया कि अम्मा ने सब कुछ बनवा कर दिया है। वो बड़ी खुशी खुशी मुझे बता रही थी कि अम्मा ने इतना अच्छा जहेज़ बना कर दिया है कि हर कोई हैरान रह गया। इतना बड़ा और ख़ूबसूरत फर्नीचर और सोने का इतना बड़ा सेट अम्मा ने बनवा कर दिया है। मैं समझ गया कि इतने सालों की मेरी कमाई कहाँ लुटाई गई है। छोटी बेटी को जहेज़ में हर सहूलत और बाकी बेटियों को सोने के जेवरात और छोटे बेटी को कारखाना खोल कर दे दिया। एक मैं ही खाली हाथ रह गया था और मेरी बीवी मुलाजमा बन चुकी थी। मुझे अपने आप पर अफसोस होने लगा कि क्यों मैंने ये सब इतने सालों में जान नहीं पाया था।
मगर मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई थी कि निदा अब तक क्यों खामोश थी, इसने मुझसे कोई शिकवा क्यों नहीं किया था। वो तो बस खामोशी से पूरे घर की खिदमत में लगी हुई थी और मेरे बेटे को संभालती थी। 2 दिन बाद ईद थी और मैं इंतहाई खामोशी से निदा और अपने बेटे के लिए ख़रीदारी की और किसी को कुछ नहीं बताया था। फिर मैंने वो सारी शॉपिंग अलमारी में रखकर एहतियात से रख दी। मैं ईद के दिन सुबह ही सुबह निदा को सरप्राइज़ देना चाहता था, इससे पहले अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेना चाहता था। लेकिन जब ईद की नमाज़ पढ़कर मैं घर में दाखिल हुआ तो निदा मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मैं कमरे में गया तो निदा हमारे बेटे सोहान को समझा रही थी कि तुम्हें यही पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे, हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं। जबकि सोहान रोते हुए कह रहा था कि हाँ, आप हमेशा ऐसे ही करती हैं, अत्थर और ताहिर के पुराने कपड़े मुझे पहनाती हैं। जिस पर निदा ने इसे समझाया कि हमारे नसीब में यही है, अब तुम खामोशी से यही पहन लो। इसकी बात सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया और एहसासे निंदामत में पड़ गया। मैं आगे बढ़ा और इससे पूछा कि जो कपड़े मैं ज़ोहान के लिए लाया था वो कहाँ है, जिस पर इसने बताया कि वो सब बड़ी आपा और छोटी आपा ने बांट लिए हैं और अपने बच्चों के पुराने कपड़े दिए हैं। निदा की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तभी मैंने निदा से कहा कि तुम मुझे माफ़ कर दो और एक आखिरी ईद इस घर में गुजार लो। ईद के बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे, मैं फ़ौरन एक नए घर का बंदोबस्त करता हूँ। फिर मैंने अलमारी से इन दोनों के लिए लाए नए कपड़े निकाले और इन्हें दिए तो ज़ोहान बहुत खुश हुआ, जबकि निदा की आंखों में आंसू बहने लगे। इसने मुझे बताया कि अम्मा को मेरा सजना संवरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए एक अरसे से मैंने नए कपड़े नहीं पहने। इसकी बात पर मैंने इससे कहा कि तुम अनमोल हो, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिली है। आज के बाद अम्मा कुछ नहीं कहेंगी, तुम तैयार हो जाके।